Today we'll be discussing about criminal trespass. Okay, last time we completed mischief. Today we are going to study criminal trespass. क्या होता है criminal trespass? Entering into someone's property without his permission. Without entering in some other person's property who is in possession of that property without the consent, whether implied or expressed, is criminal trespass. Now, the consent can be expressed or implied. Expressed matlab he has clearly stated yes or no. Implied means the body language, the gestures, avoidance indicate that that particular person is not interested to allow you inside the property. Some person might have legally entered your property, but he is not living. That particular person is not leaving your property even though you have said that you have to go. But still that person is not going. That is also trespass. Some person might enter your property. He will say, yes, I want to enter, and you allowed. Or that person is a known person. That person can be your friend, it can be your relative, it can be anybody. And after coming inside, if there is, that person is creating fear in your mind, intimidation, annoyance, okay. These are all factors very much also required for trespass. Trying to damage your property, okay. Trying to create nuisance in your property. All these other criteria are important. So, the definition of criminal trespass is provided under section 441. All right. So, mostly in the examination, a question can come on short note. But in that you have to mention a definition, punishment and a case law, that's it. But a 10 marker comes, then you will have to mention about the aggravated forms of criminal trespass, that is serious forms of trespass, that is housebreaking by night. Now that is very serious. आप अगर रात में ताला तोड़ के किसी घर में एंटर करते हो, घर में या कोई भी ऐसी जगह, any place where people are dwelling मतलब रहते हो, okay, then the punishment becomes even more serious, and that is an aggravated, serious, grievous form of trespass. So definition, 441, whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense. देखा, बस एंटर किया है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है. Like intimidate करना, insult करना, annoy करना. After entering into your property, आपके प्रॉपर्टी के बाहर जाके नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दैट इज़ न्यूस, पब्लिक न्यूसेंस. जैसे कोई बैंड बाजा बजा रहा है, कोई भीख मांग रहा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज़ नॉट ट्रेसपास, क्योंकि वो आपके प्रॉपर्टी के अंदर आया ही नहीं है. इसीलिए कई बार अभी जो लोग आते हैं, कई बार सम पीपल का मन कुछ बैंड बजाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से, ताकि आप जाके उसको पैसे दे दो, जा भाई यहाँ से. पर वो आपकी बिल्डिंग से अगर रास्ता बहुत क्लोज है तब आप एनॉय होंगे. वो आपके प्रॉपर्टी के बाहर है तो आप सिक्योरिटी गार्ड को बोल को उसको भगाते हो, बट एक्चुअली आपको उसको भगा नहीं सकते. भगा कैसे सकते हो? अंडर न्यूसेंस, कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, नॉट अंडर ट्रेसपास, बिकॉज ही हैज़ नॉट एंटर्ड योर प्रॉपर्टी. और जैसे मैंने कहा, सेकेंड पार्ट जो है डेफिनेशन का, लॉफुली एंटर्ड योर प्रॉपर्टी, कायदे से वो आपके प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद, देन अनलॉफुली ही इज स्टेइंग देयर, unlawfully is remaining in your property, even though that particular person who is in possession, I am saying again and again, possession, not ownership. Now this is a college. Am I the owner? No. But right now I am in possession of this particular class. I have the possession. I am not the owner. Now whether to allow anybody to enter the class, it's my decision. Because I am in possession. If I say get out, don't come inside, you are late, then that particular student has to leave. If still that student enters, then I will leave. Me jato re baba. Then everybody will bhadkufy. Hey, baharo. Let Aditya sir teach. You get out. Then I will continue. So trespass, the mandatory thing is possession, not ownership. जिसकी प्रॉपर्टी है, ओनर नहीं हो सकता, उसका सर्वेंट हो सकता है, उसका एम्प्लॉय हो सकता है, उसका सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो दैट थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अलॉन्ग विद एंटरिंग आफ्टर प्रॉपर्टी, ही इज अनॉइंग यू, ही इज इंटिमिडेटिंग यू, ही इज क्रिएटिंग fear in your mind that he might commit, apprehension of certain kind of a offense he might commit after entering your property. What if we own a property but we are not staying there? We just have the ownership and it is not in our. There is nobody to take care of your property and somebody has entered and that person is living or using your property and he is being there for 1 month, 2 months, 3 months, then it is criminal trespass
plus illegal possession of your property, that is called as encroachment, where you cannot use force and kick him out. Neither the police can do anything in that particular case. You'll have to go to the court and clear your title, or declare your title, not clear. It's your title, obviously. You'll say that this person has encroached upon your property. If that person has constructed something, some part of the building pillar is inside your property, which is the most common thing which happens, कि एक बिल्डिंग का पूरा एक पिलर अंदर आ जाता है, तो वो पिलर तोड़ देंगे तो बिल्डिंग ही टूट जाएगी. Then what happens normally in such cases, that person will give you compensation, but your property is gone. So some part of your property is gone. It will come under trespass. Yes, that is trespass if you file criminal charges. Otherwise, it's a civil case under transfer of property, ownership of your property. You're getting me? So civil, that is a civil perspective. When you're saying that person is staying encroaching, and whatever profit he earns from that particular property, which is yours through encroachment, that is called as men's profit, which needs to be calculated by an officer who is appointed by the court. Because कब से है वो हमें नहीं पता. You are as a person, you went to the judicial magistrate to file the case. You don't know from how many days he is there. Then investigation has to be carried out. Inquiry has to be carried out by the magistrate. And then पूछताछ करके या उसके बैंक रिकॉर्ड्स देख के तब पता चलेगा कैसा कितना पैसा आ रहा है. खेती कर रहा है, आपके यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी है उसने, पूरा का पूरा ज़मीन हड़प के कर रहा है ना भाई, हो रहा है ना. गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, पहले प्यार से समझाते हैं कि पैसे लेके निकल ले, पर आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, आपका इन्वेस्टमेंट है. आपकी प्रॉपर्टी में घुसने के बाद आप ऐसे इंसान को क्यों प्रॉपर्टी देना चाहोगे? तो कई बार लोग बोलते हैं अब छोड़ो, पैसे दे दो, हो गया है, अब जितना भी आप उसमें भी अच्छा खासा पैसा देते हो लोग. आपको बोलेंगे कितने का ज़मीन है, 10 करोड़ से 15 करोड़ ले, लेकिन वो उधर 200 करोड़ का मारा है ना बिल्डिंग बांध के. ये समझ में नहीं आता हमें. तो ऐसा बहुत चल रहा है. इलीगल कंस्ट्रक्शन तो लाइन लगी है. अतिथि कब जाओगे? यस, हाँ, वो तो ट्रेसपास प्लस वो तो घर में घुस गया है. ये एंटर्ड लीगली थिंकिंग. अतिथि कब जाओगे उसके अंदर एक्चुअली उसके बच्चे जो होते हैं दे आर डाइड बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट अटैक ना, राइट? कार्तिक आर्यन का मूवी है, अजय देवगन का. हाँ राइट, बहुत सिमिलर पिक्चर हो गए हैं यार. उसमें वो उनका मामा बन के आता है बट होता नहीं है एक्चुअली. हाँ, फिर वो बोलते हैं कि जाओ करके, तो वो नहीं जाते. काफ़ी चीज़ें वो करता है कि अपने दोस्तों को बुलाना, पार्टी करना. सही है. मैं अभी तक मामा के एज का हुआ नहीं हूँ, तो मैं भी घुस जाता. अरे मैं आपका मामा हूँ, अभी बाल सफ़ेद नहीं है अब तक. Property can be movable and immovable as well. नहीं, ट्रेसपास पे इमूवेबल ही होनी चाहिए. हाँ, अगर आपकी कार में भी घुस गया है तो वो भी ट्रेसपास ही है. Traveling in train without ticket can be trespass. हाँ, यस. ट्रैवलिंग इन ट्रेन, ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. टिकट निकालने तो क्या करेंगे, ट्रेन वहीं पे रोकते हैं और वहीं पे उतार देते हैं, या बस वहीं पे रोक के आपको उधर उतार देते हैं. अगर एक ही प्लॉट पे 2-3 रजिस्ट्रीज करवा दी, तो विल दैट बी अ ट्रेसपास? 2-3 रजिस्ट्री, तो वो तो फिर किसके नाम पे सबसे पहले हुई वो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज पीपल ट्राई टू झोल करते हैं अपने नाम पे, फेक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं. तो सबसे पहले जिसकी उसका वो प्रॉपर्टी होगा. 2, 3, 4 कुछ भी करो तो ऑफिसर पहले वो सस्पेंड होगा. Yes, sir, because both those people who have done the registry later, they might not know that पहले registry हो चुकी है. If they don't have any knowledge about the particular factor, then it is fraud. सेक्शन 420 हो गया वो. क्योंकि अरे तो उसके अंदर ये भी ट्रेसपास नहीं होगा, वो फ्रॉड हो जाएगा कि मुझे गलत फैक्ट्स, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, चीटिंग, सेक्शन 415. और if the person knows, still वो registry करवाता है, तो वो चोर है खुद, उसको मारो पकड़ के. Then that particular, if he knows everything, still is going and doing registry, then that particular person is himself fraud. पता है ना मुझे किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, सो आई एम फ्रॉड, आई एम सेक्शन 420. आई एम मतलब वो तुम्हारा दोस्त, ठीक है. उसके बाद सेक्शन 442 हाउस ट्रेसपास. तो थोड़ा ये टिपिकल हाउस ट्रेसपास मतलब वेर एवर एनी पर्सन इज ड्वेलिंग, कहीं पे अगर कोई पर्टिकुलर रहता है इंसान तो वो हाउस ट्रेसपास होता है. अदरवाइज ट्रेसपास में जैसे मतलब कॉलेज में एंटर करना, किसी पर्टिकुलर जगह पे एंटर करना जहाँ पे आपको परमिशन नहीं है. So there are wildlife sanctuaries, national parks, there are certain areas where government does not allow, there are certain islands in Nicobar where there are cannibal tribes. आप जाओगे तो आप उनका नाश्ता बन जाओगे, मेरे को 4 दिन तक खाएंगे, पर आप लोग नाश्ता बन जाओगे. तो certain tribes are cannibals. तो वहाँ पे अगर एंटर अलाउड नहीं है, वहाँ पे इंसानों को जाना ही अलाउड नहीं है. ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गोज और सम डॉक्टर्स गोज इफ दे फॉल इल. तो उसमें भी बहुत वो
बहुत डेंजर काम है, उनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ डिजीजेज एंड ऑल। तो वहाँ पे आपको अलाउड नहीं जाना, फिर भी आप एंटर कर रहे हो तो आपको पुलिस वाले उठाएंगे कि ट्रेसपास कैसे किया आपने। सर्टन डेंजर जोन्स आर देयर जहाँ पे आप अलाउड नहीं होते अंदर जाना, फिर भी आप जा रहे हो। कोई प्राइवेट बड़े बड़े कंपनीज की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके चले गए तो नुकसान भरपाई आपको भरनी पड़ेगी। तो हाउस ट्रेसपास का यही मतलब है कि इट कैन बी एनी बिल्डिंग, इट कैन बी ए प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई टेम्पल हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकता है, कोई चर्च हो सकता है जहाँ पे आपको अलाउड नहीं है, या किसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो किसी इंसान की कस्टडी में, या वहाँ पे आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ रखते हो, बैंक, उसमें भी आप एंटर करते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हाउस, बिकॉज वहाँ पे लोग ड्वेल, वहाँ पे रहते हैं इंसान, लोग अंदर, पीपल आर स्टेइंग इनसाइड एंड स्टिल यू ट्रेसपास गन लेके, तो भाई ट्रेसपास प्लस थेफ्ट प्लस रॉबरी हो जाएगी वो, प्लस डेंजरस वेपन। और कितने लोग हैं, अगर 5 से ज़्यादा है तो डकैती। So there are certain types of places where the rules are that that particular person of a community cannot enter. हाँ करेक्ट, साबरमला टेम्पल, साबरमला टेम्पल एज ऑफ अ गर्ल फ्रॉम 10 to 50 कैनॉट एंटर, बट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया 4:1 वेयर दे सेड दैट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी और दिस पर्टिकुलर रूल इज लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आर्टिकल 15, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. So they allowed it, and they said that this is not an essential religious practice. But Indu Malhotra, Justice Indu Malhotra said that court does not have the authority to decide whether a particular practice is essential or not for a particular religious community. जजमेंट पास हो गया है, बट प्रैक्टिकली वहाँ पे औरतें जाती नहीं हैं, क्योंकि औरतें ही उनको रोकती हैं। औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत ही होती है। हाँ, दैट इज़ नॉट अलाउड, इसलिए तो वो हफ्ता भरते हैं ना। आप जो बोल रहे हो पब्लिक रोड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, अभी ये पुणे क्या वो बिग बाज़ार, डी मार्ट, ये सब सारे बड़े बड़े जो है मॉल्स, अकॉर्डिंग टू द कॉरपोरेशन रूल्स नो बडी कैन सेल एनीथिंग आउटसाइड द मॉल। वो चोना जुरू गरम, पानी पूरी का वो खड़ा टेबल लेके खड़ा हो जाता है, वो इलीगल है। वो गाड़ा लेके खड़ा हो जाता है वहाँ पे, वो कुछ बेच रहा है, भेल बेच रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, दाबेली, अरे यार खाने की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डाइट पे हूँ मैं, नहीं। तो दाबेली ये वो ऐसा बेचते हैं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। कहीं पे भी आप पब्लिक प्रॉपर्टी, भात सब्जी बेचते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं, दैट इज़ ऑल ट्रेसपास, एंक्रोचमेंट, ट्रेसपास प्लस एंक्रोचमेंट। तो उनको हफ्ता भरना पड़ता है, अगर वो हफ्ते नहीं भरेंगे तो उनकी गाड़ी सब उठा के लेके जाते हैं गवर्नमेंट वाले। मेरे आंखों के आगे मैंने देखा है, पूरा का पूरा ठेला, पूरा का पूरा वो गाड़ी में ऐसा फेंकते हैं सब कुछ सामान, दे थ्रो एवरीथिंग इन द ट्रक ऑफ द कॉर्पोरेशन। अतिक्रमण पण म्हणतात त्याला, अतिक्रमण की वो एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन करके कई बार लोग बाहर तक आ जाते हैं। कई सारे ये जो आपके बीजेपी, शिवसेना, मनस है, इनके जो ऑफिसेज है, वो सब अतिक्रमण है, वो अलाउड नहीं है वहाँ पे। हाँ, आउटसाइड द हाउस दे ऑल्सो टेक फुट साइड इनसाइड, और सम द होटल्स और द शॉप्स दे एक्सटेंड द छत, वो एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक का छत या पतरा ठोक देंगे जहाँ पे होटल में बाहर के लोग वहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं। ऑल दैट इज ऑल अतिक्रमण। उसने थोड़े से और आगे पूरा एक बाथरूम बना रखा है, तो मैंने बोला कभी म्यूनसिपैलिटी वाले कॉर्पोरेशन से परमिशन लेना। नहीं परमिशन नहीं है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तोड़ दे, हमारे पास दूसरा है। सही है, तो वो लोग इतना ज़्यादा लेके बैठे। बिंदास करते हैं लोग। मतलब कभी मेरे को लगता है ना, लॉ ज़्यादा पढ़ लिया मैंने, तो आदमी डरता है। कभी मारते समय भी मैं मारने लग गया ना, तो मैं रुक जाता हूँ, अरे ये मर गया तो, अगर इसको ग्रीवियस हर्ट हो गया तो एमैस्कुलेशन या कटिंग ऑफ द हैंड्स, कटिंग, फ्रैक्चर, थोड़ा डिसफिगर, दांत टूट गया तो मैं रुक जाता हूँ मारना। हाँ, सोसाइटी में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, बट एवरीबडी इज लाइक हैविंग फियर कि अगर एक का कंस्ट्रक्शन टूटेगा तो सबका कंस्ट्रक्शन टूटेगा। इसके लिए कोई कंप्लेंट भी नहीं करता, एवरीबडी विन विन सिचुएशन है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सभी उसकी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कोई बोल रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ करना है जो उसको पर्सनली उसका फ़ायदा हो रहा है, देन अभी फॉर एग्जांपल देयर वाज, मैं अपना बताता हूँ, मेरे अंकल थे, तो उनका सोसाइटी था, तो देयर वाज वन पर्टिकुलर पर्सन हु वाज लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर को लग के पहले के जो बिल्डिंग्स हुआ करते तो नीचे पार्किंग नहीं होती थी, डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर मतलब जीरो, ग्राउंड मतलब ग्राउंड, कि वहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे अंदर जा सकते थे, फिर पहला माला दूसरा माला। तो उसके बाहर एक छोटा सा ऐसा एक कार पार्क हो जाए इतना जगह था, उसने वहाँ पे मस्त गार्डन बनाया, वहाँ पे बैठ रहा है, झूला लगाया, सब अभी वो पहले 20 सालों से है वो वैसा, सभी को लगा ये इसकी जगह है,
एंड देन रिकंस्ट्रक्शन को जब बात निकली तब पता चला कि ये तो पार्किंग की जगह है। पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का हो वो अतिक्रमण ही करेगा, हाँ, उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट केस हुआ था तो वो पूरा तोड़ देंगे यार। अरे वो तो नोएडा के ट्विन टावर्स भी तोड़ दिए, वो चेन टूट जाती है, वो लोगों को 4 लोगों को खुश नहीं करता, इसके लिए होता है। पंगा नहीं लेने का, पंगा लिया तो उसका वो सब खत्म कर देते हैं, ये उसका बैकग्राउंड है, वरना वो जुडिशरी भी कुछ नहीं करती। चालू दे ओके। 20 साल से रह रहे तो एडवर्स पोजीशन में जाए। नहीं, इलीगल इंक्रोचमेंट हो गया। रिकंस्ट्रक्शन के समय सब चिल्लाने लग गए कि अभी क्योंकि वो पहले वो कॉमन प्रॉपर्टी है दैट, वहाँ पे कोई भी अपनी 4 व्हीलर, पहले पुराने ज़माने में पार्किंग का कुछ था ही नहीं, सिर्फ फ्लैट था, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियाँ ही नहीं थी, लोग साइकिल पे घूमते थे। उतने पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो लोगों के पास बाइक या कुछ साइकिल होती थी, तो वहाँ पे किसी का कार है तो वो वहीं पे लगाता था पुराने बिल्डिंग्स में, क्योंकि पार्किंग अलॉटमेंट नहीं है, रास्ते पे पार्किंग किए जा रहे हैं सब लोग, तो वहाँ पे वो मस्त सेटअप कर दिया। ही वॉज द फर्स्ट गाय टू एंटर द सोसाइटी। उसने फटाक से वहाँ पे मस्त बना लिया, गार्डन बिर्डन ऐसा दिखा रहा है सबको, गेट बीट लगा दिया, कंपाउंड लगा दिया, सबको लगा ये उसका, क्योंकि उसको साइड उसने बिल्डिंग उसकी जो ये है दीवार है उसमें से दरवाज़ा बना दिया एग्जिट पॉइंट, जहाँ से वो बालकनी में जाके मस्त बैठ रहा है, विटामिन डी खा रहा है सुबह 7 बजे। मैं होता तो जिम विम सेटअप कर लेता वहाँ पे। ये सर वो रहता है ना 12 साल तक कोई क्लेम नहीं करे तो एडवर्स पोजीशन हो जाता है। हाँ वैसा है, लेकिन बाकी के लोगों ने मानना चाहिए ना, बिकॉज वो अगर अपार्टमेंट नहीं है, वो सोसाइटी है, तो बाकी के सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया रिकंस्ट्रक्शन के वक्त, होने ही नहीं देंगे रिकंस्ट्रक्शन। तो बोल रहा है ये पार्किंग मेरी यार, तेरी नहीं है, कॉमन पार्किंग है, वहाँ पे कोई भी गाड़ी लगा सकता है, ऐसा है। एंड ही वॉज नॉट पेइंग एनी रेंट, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं, ऐश कर रहा था बस। सर टेनेंसी और जो लीज एग्रीमेंट्स रहते हैं जब ये ओवर हो जाते हैं तो आफ्टर दैट इवन इफ देयर इज एनक्रोचमेंट देन दैट विल बी द क्रिमिनल केस। लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद एविक्शन कर देना चाहिए था टेनेंट का, या जो लेसी है उसको, जाइए आपका हो गया, या अगर नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिन्यू कीजिए। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिन्यूड एंड ही इज कीपिंग पेइंग यू द रेंट, देन ही हैज द राइट टू स्टे। बट इफ यू डोंट वांट देन गो टू द कोर्ट एंड इविक्ट हिम कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी हमको आना है वहाँ पे, बाबा हमें रेंट पे चढ़ाना नहीं है, अरे मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसको ऑफिस करना है वहाँ पे, दूर जा ही नहीं रहा हो, वो जा ही नहीं रहा, इसलिए मेरे फादर की रेंट पे ही नहीं डालते फ्लैट को, छोड़ो। उसके बाद सेक्शन 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास, whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass, मतलब छुप छुप के एंटर कर रहा है from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent, vessel is said to commit lurking. Lurking मतलब छुप के। तो नॉर्मली जो चोर होते हैं वो उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है कि जो फेस कवर करके, नहीं इन जनरल नहीं, फेस कवर भी कर दिया तो भी दिख जाएगा ना वो बंदा। लर्किंग मतलब एब्सोल्यूट कंसीलमेंट, कि मैं अंदर आया, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। तो मोस्टली जो चोर होते हैं वो ऐसा एंटर करते हैं कि जो ओनर है उसको, या जो पोजीशन में उसको पता ही ना चले कि मैं अंदर आके कुछ चोरी वोरी करके चला गया। सो ये। उसके बाद लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, यही चीज़ अगर आप रात में करोगे, मतलब आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, तो इसको कहा जाता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अभी ये हो गया हाउस ट्रेसपास, दिस इज ऑल हाउस ट्रेसपास। हाउस ब्रेकिंग अलग चीज़ है, मतलब ताला तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के, खिड़की फोड़ के आप अंदर घुस रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे बेबी मूवी अगर आपने देखा होगा, क्या, हाँ ट्रेसपास का ही टाइप है, एग्रेवेटेड फॉर्म में जा रहे हैं ना, अभी अंदर ही जा रहे हैं बट एग्रेवेटेड फॉर्म। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, हाउस ट्रेसपास तो ऑब्वियसली, पर हाउस ब्रेकिंग और ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हाउस ट्रेसपास में आपने एंटर कर दिया, अब यहाँ पे कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन अंदर से अगर मैंने दरवाज़ा, काफ़ी टीचर्स ऐसा होते हैं क्लासरूम को अंदर से लैच लगा लेते हैं, तो बच्चे आके टुक 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 करते हैं, कोई खुलता नहीं, तो बच्चा समझ जाता है कि भाई सर एंटर नहीं करने देने वाले, तो चला जाता है बच्चा। फिर भी कोई कोई होते हैं टुक 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 टुक, मतलब आज इसकी बजने वाली है, वो गाली खाने वाला है। तो कोई अगर वो तोड़ के अंदर आ गया और ये वो हल्क हो गया और वो दया बन गया CID में का, और उसने दरवाज़ा तोड़ के एंटर आ गया, तो वो तो फटके खाएगा। दैट इज़ ब्रेकिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर हाउस। तो हाउस ब्रेकिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सेक्शन है। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास ऑब्वियसली if he affects his entrance into the house by following 6 ways। तो 6 अलग अलग तरीकों से उन्होंने बताया है कि आप हाउस ब्रेकिंग कैसे कर सकते हो। ऑब्वियसली इट विल लीड टू हाउस ट्रेसपास, लेकिन
आप किसी के घर के अंदर अगर इन 6 स्टाइल्स से अंदर एंट्री करते हो तो फिर उसको हाउस ब्रेकिंग कहा जाएगा। पहला क्या है? इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ। मूवीज में देखा होगा वो सुरंग बना के घुसते हैं या बाहर निकलते हैं। ओके, उसने अपना एक पैसेज बनाया, जैसे बेबी मूवी का मैं एग्जांपल दे रहा था जहाँ पे अक्षय कुमार और वो जो अपना भल्लाल देव, वो दोनों, राणा गुट्टी क्या नाम है उसका? हाँ बाबा धन्यवाद, कुछ तो नाम है, राणा है उसका नाम, तो उसका भल्लाल ही, मैं उसको भल्लाल देव बोलता, अपन उसका फ़ैन है, बाहुबली से भी ज़्यादा, एक नंबर है, मारो साले को, एक नंबर। तो वो दोनों जब एंटर करते तो वो तार होती है, तार को शॉक होता है, हैक करके वो तो इलेक्ट्रिक शॉक को बंद करके पूरा वो जाली को तोड़ के, मतलब दे आर क्रिएटिंग अ पैसेज। उसके बाद वो छलांग मारते हैं दीवार के ऊपर, फिर ऊपर है ब्ला ब्ला ब्ला, तो दैट इज दे आर क्रिएटिंग अ पैसेज बाय कटिंग ऑफ द जाली को काट के अंदर कर रहे हैं या सुरंग बना रहे हैं। सो दे क्रिएट अ पैसेज, अपने आप से क्या पैसेज बनाते हैं, किसी की मदद लेके, या किसी को मदद भी अगर आप करोगे देन दैट पर्सन विल बिकम अ पार्ट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ओके, कि उसको कोई मदद कर रहा है इस चीज़ों में, जैसे अभी उस बेबी में अनुपम खेर इज हेल्पिंग देम टू टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक विच वॉज देयर इन द फेंस, राइट? तो वो उसकी मदद कर रहा है, तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट क्राइम। देन ऑब्वियसली वो बेटर है, वो उसका मदद करने वाला है, तो वो भी आएगा। तो सबसे पहले तो आप खुद का रास्ता खुद बना रहे हो, तो हाउस ब्रेकिंग मत करो, करियर में करो करियर ब्रेकिंग, कुछ हाउस ब्रेकिंग मत करो, अपनी पाथ खुद बनाओ। सेकेंडली, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, कि कोई पर्टिकुलर है, मतलब वहाँ से आप अंदर जा सकते हो, मतलब खिड़की, कोई खिड़की है, मतलब कभी कभी काफ़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है तो आप अंदर बाहर कर सकते हो उस खिड़की से, मतलब दैट इज़ नॉट मेंट फॉर एंटरिंग ना, बट वो खिड़की है, दैट इज़ नॉट यूज टू एंटर हाउस, समबडीज हाउस। हाँ, अनलेस आपके गर्लफ्रेंड का हाउस है, आप जा सकते हो, वो खुद आपको अंदर आने दे रही है, सो आप, या मैंने नहीं करा ट्रेस पास, उसने खुद मुझे अंदर लिया है भाई, तो खिड़की से एंटर कर रहे हो अगर, तो दैट इज ऑल्सो हाउस ब्रेकिंग, बिकॉज दैट एंट्रेंस इज नॉट मेंट, और दैट पर्टिकुलर विंडो इज नॉट मेंट फॉर एंट्रेंस, ह्यूमन एंट्रेंस। फिर भी आप उसके थ्रू ये करके, वो खिड़की की कांच फोड़ के या खोल के, खिड़की कभी कभी खुली रह जाती कई बार, और अंदर कुछ जाली नहीं है, कुछ नहीं, तो वो एंटर कर जाते हैं। सो अगर उस तरीके से अगर आप एंटर करते हो, दैट अगेन इट विल बी अ हाउस ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग ओवर वॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा, इफ ही एंटर्स और क्विट्स मतलब बाहर जा रहा है, थ्रू एनी पैसेज has opened in order to committing a house trespass by means by which the passage was not intended by the occupier of the house to be opened, मतलब ताला लगा हुआ है, ताला है आपके दरवाजे को, फिर भी वो ताला खुलवाया आपने किसी की मदद लेके, या आपने खुद खोल दिया, आपके पास मैजिक की है, सब ताले की चाबी होती है ना, कोई एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें, तो सब माले की चाबी आपके पास है, तो आपने वो दरवाज़ा खोल दिया और आपने एंटर कर लिया आसानी से। तो अगेन दैट इज़ द थर्ड टाइप, जहाँ पे लॉक्ड है, मतलब जो ऑक्युपायर है, जो प्रॉपर्टी के पोजीशन में है या ओनर है, उसने दरवाजे को लॉक लगा दिया है और आपने उसको ओपन करके आपने एंटर किया। फोर्थ, इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक, वो उसके आगे वाला पार्ट है, पहले वाले पार्ट में ये भी हो सकता है, अभी लैच है सपोज, अभी लॉक का आ गया। फिफ्थली, इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, अब ये मैं हूँ, कोई बंदा सिक्योरिटी गार्ड खा रहा है, वो अंदर परमिशन के बिना अंदर नहीं छोड़ रहा, मैं एक कान के नीचे बाजेगा, धाप धूप करके चल मैं अंदर जा रहा हूँ, क्रिमिनल फोर्स प्लस असॉल्ट, एंड देन आई एम एंटरिंग समबडीज, कोई आपका रिलेटिव है, वो आपको अंदर नहीं छोड़ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि डिवोर्स केसेस में, झगड़ों में, फादर होता है, वो अपने बच्चों को लेने के लिए आ जाता है, घर में चला जाता है, तो उसके सास ससुर या उसकी बीवी या उसकी बीवी का भाई, वो उसको रोक रहा है, और मारा बेटी, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके आपने एंटर किया और आपने बच्चों को उठाया और आप चले गए। अभी ये किडनैपिंग भी नहीं है, हाँ ट्रेसपास लगेगा, हाउस ब्रेकिंग लगेगा, लेकिन दिस इज नॉट किडनैपिंग। नेचुरल गार्डियन है फादर या मदर भी कर सकती है, औरतें भी डेंजर है आजकल, तो औरतें तो हाथ भी नहीं लगाएगा, इसको हाथ लगाएंगे तो साला अपने ऊपर तो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन अंडर सेक्शन 354 हो जाएगा, क्रूएल्टी हो जाएगा, कौन से सेक्शन लग जाएंगे आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो औरतों के लिए आसान है, क्रिमिनल फोर्स से असॉल्ट करने की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या थ्रेट कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो। एंड फाइनली, इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज which he knows to have been fastened against such entrance or departure and
टू हैव बीन अनफास्टन बाय हिमसेल्फ और बाय एन अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास, मतलब उसको चेंड किया हुआ है। फास्टन मतलब जैसे कुत्तों को अपन मतलब चेन करके रखते हैं, गले में पट्टा डाल के उसको बांध के रखते हैं, उसी तरीके से किसी एंट्रेंस को अगर चेंड करके रखा है, उसको खोल के आप किसी रस्सी से बांधा है, चेन से बांधा है, और वो आपने जो गांठ है वो छोड़ निकाल के आपने एंटर किया। सो दीज आर डिफरेंट वेज थ्रू विच हाउस ब्रेकिंग हैपन्स, वेयर द पर्सन ऑक्यूपायर ऑफ दैट प्रॉपर्टी हैज़ क्लोज्ड सर्टन पैसेजेस टू नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर। तो कई बार जब बंटवारा हो जाता है भाइयों में, बहनों में, एक ही घरों में रहने वाले हो, तो इवन देयर इज़ एक ही घर में रूम्स अलग अलग इंसान के नामों पे कर दिया जाता है झगड़ों की वजह से। हर एक रूम में अपना अपना अलग मीटर होता है, ओके। तो वो अभी अवॉइडिंग सीइंग ईच अदर, तो वो अलग अलग तरीक़ों से दरवाजे बंद कर देते हैं या खोल देते हैं, जिससे या बनवाते हैं जिससे बाहर से बाहर मतलब अंदर सभी को देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ताकि पर अभी कोई आया है जिसने ट्रेसपास करना है, अगर किसी को उसकी प्रॉपर्टी का कोई तोड़फोड़ करना है तो वो दरवाज़ा खोल देगा या फोड़ देगा, या कम्प्लीटली मेरा तो सिंपल तरीका है भाई दीवार बना दो, बंटवारा एक वॉल बना दो, मतलब बात ख़त्म, ओके। सो दीज आर डिफरेंट वेज थ्रू विच आप हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग कर सकते हो। सो ऑब्वियसली उसके अंदर हाउस ट्रेसपास भी है, ओके। उसके बाद हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यही चीज़ें अगर आप रात में करते हो तो उसको हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट बोलते हैं, मतलब आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। अभी जो पनिशमेंट है नॉर्मल सिंपल क्रिमिनल ट्रेसपास की, नॉर्मल सिंपल कि गए है हु थाड़ धोड़ चलो वापस, मतलब ये नॉर्मल है। ना ही आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हो, ना ही आप हाउस ब्रेक कर रहे हो, आप ना रात में कर रहे हो, नॉर्मल आप गए ओके चलो थोड़ा सा नॉर्मल क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, तो उसमें 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है या 500 रुपये तक की भी फ़ाइन लग सकती है। तो 500 रुपीज़ देने का और टेंशन दे के आने का उसको, है ना। सो 500 रुपीज़ का फ़ाइन है मैक्सिमम, और मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा है, या दोनों भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्रिमिनल ट्रेसपास जब होता है तो लोग बहुत अलग अलग एलिगेशंस लगाते हैं। घर में फीमेल है तो अटेम्प्ट टू रेप का लगा देते हैं, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का लगा देते हैं, सास ससुर पे भी लगा देते हैं, क्रूएल्टी का, पूरी फैमिली का नाम ले सकते हैं। तो ये सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास, अगर वो हाउस ट्रेसपास होगा तो अलग अलग सेक्शंस भी लगते हैं ट्रेसपास के साथ। उसके बाद पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास 1 साल तक की सज़ा है, अप टू 1 ईयर, विच फाइन 1000 रुपये की फ़ाइन लग सकती है। और हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, मतलब आप किसी के घर में एंटर करते हो टू कमिट मर्डर, टू कमिट डकैती, टू कमिट गैंग रेप, तो इन सभी ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है वो है डेथ पेनल्टी। सो यू वांट टू कमिट अ क्राइम जिसकी पनिशमेंट किया नहीं है, पर वो आपका इंटेंशन वो है, आप उस इंटेंशन से आपने हाउस ट्रेसपास किया, तो उसकी पनिशमेंट 10 साल तक है और उसके साथ फाइन भी लगेगी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगेगा, या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड वॉट उसका भी चार्ज लग सकता है, ओके। उसके बाद अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करना चाहते हो जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अगर ऐसा कोई आप ऑफेंस कमिट करना चाहते हो थ्रू हाउस ट्रेसपास, तो अगेन उसकी भी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या आपको 10 साल तक की सज़ा होगी, एंड फाइन इज मैंडेटरी बिकॉज दीज आर ऑल एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। तो जब भी 10 मार्क के लिए आएगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, भले ही सेक्शन याद ना रहे लेकिन कंटेंट लिखो। सेक्शन नंबर लिख दोगे तो हाँ +2 मार्क्स तो 100% मिलेंगे जिसने लिखा है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई ऑफेंस आप कमिट करते हो जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी नहीं है, नॉर्मल 7 साल 10 साल 5 साल ऐसा कुछ है, तो उसमें आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, ओके। पर लेकिन चोरी करने के लिए अगर आप ट्रेसपास करोगे तो सज़ा आपकी 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ओके। उसके बाद हाउस ट्रेसपास, एल्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आपने हाउस ट्रेसपास किया, किसके लिए किया? किसी को हर्ट करना है, किसी का असॉल्ट करना है, या किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट करना है। अगर ये आप सब करोगे तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है प्लस फाइन। उसके बाद पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, मतलब छुप छुप के कंसील करके अगर आप हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेक करते हो तो तब आपकी सज़ा 2 साल तक हो सकती है एंड फाइन। उसके बाद
Same, lurking, house trespass or house breaking in order to commit offense which is punishable with life imprisonment. तो सीरियस ऑफेंस अगर आप कमिट करोगे तो इसकी भी पनिशमेंट आपको 3 साल तक की हो सकती है, प्लस फाइन भी लग सकती है. लेकिन अगर उसी जगह के आप चोरी करना चाहते हो देन अप टू 10 years. उसके बाद 455 लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. मतलब आप प्रिपरेशन करके गए हो, मतलब आपके पास कोई डेडली वेपन है. whenever you do any kind of trespass with a deadly weapon to hurt someone, तो पनिशमेंट ऑब्वियसली काफ़ी बढ़ जाएगी, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है. इफ़ आप प्रिपेयर करके गए, आपके पास छुरा है, गन है, आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन को आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो, तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है. और यही चीज़ें अगर आप रात में करोगे तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी. पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो 3 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन. ऑफेंस कमिट करना चाहते हो रात के समय में तो उसमें 5 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन. पर उसकी जगह पे आप रात में अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सॉरी, 14 years तक सज़ा हो सकती है. सो यू आर डूइंग हाउस ब्रेकिंग छुप के प्लस थेफ्ट. सो हाउस ब्रेकिंग प्लस लर्किंग, दैट इज, और प्लस इट इज़ इन द नाइट, प्लस थेफ्ट, तो 14 साल तक की सज़ा हो सकती है. उसके बाद प्रिपरेशन से गए, डेडली वेपन लेके गए रात में चोरी करने के लिए, तो उसकी भी सज़ा आपको 14 साल तक हो सकती है. किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को असॉल्ट कर रहे हो, किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहे हो, 14 years. उसके बाद ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड वाइल कमिटिंग लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और ग्रीवियस और हाउस ब्रेकिंग. अगर आपने हाउस ट्रेसपास करते हो किसी को ग्रीवियस हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट का डेफिनेशन हमने सेक्शन 320 में पढ़ा है. किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, तो वो ज़्यादा पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आपको पनिशमेंट हो सकती है, या 10 साल प्लस फाइन. 460 ऑल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल वेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड बाय वन ऑफ देम. देखिए, अगर 7-8 लोग रात में छुपके से किसी का घर तोड़ के एंटर करते हो और उसमें से एक आदमी ने खून कर दिया, ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो ये कॉमन इंटेंशन जो था सेक्शन 34 वो भी अप्लाई होगा. एंड दिस इज अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा लोग हैं. तो अगर 3 भी हो सकते हैं तो वो वाला सेक्शन नहीं लगेगा, सेक्शन 141, 149 नहीं लगेगा, सेक्शन 34 लगेगा. 5 से कम लोग हैं तो इसमें अगर आप ऐसा कुछ कर जाते हो तो भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है या 10 साल प्लस फाइन. उसके बाद डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी. अब ये रिसेप्टिकल मतलब तिजोरी, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो लॉक्ड है, उसको आप खोलते हो और उसके अंदर का कुछ भी वैल्यूबल अगर है तो उसको आप, तो इसकी ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक टू ट्रेसपास, पर ट्रेसपास करने के बाद अगर आपके पास कोई तिजोरी या छोटा सा कोई बॉक्स मिलता है जो लॉक्ड है, जिसको आप ओपन करते हो, उसके अंदर की कोई वैल्यूबल चीज़ अगर आप ले लेते हो तो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फाइन या दोनों. फाइन दे के भी आप छूट सकते हो. एंड द फाइनल सेक्शन फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास इज सेक्शन 462, पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन एंट्रस्टेड विथ कस्टडी. मतलब मैंने आपको रिसेप्टिकल दिया है, आपको मैंने वो बॉक्स संभालने के लिए दिया है, ओके, कि इसके अंदर कुछ वैल्यूबल चीज़ें हैं, तो आई हैव इंटरेस्टेड. तो इसमें थोड़ा एंगल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है, क्योंकि मैं आई एम एंट्रस्टिंग दैट पर्टिकुलर तिजोरी टू यू सो दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. पर आप ही ने वो तिजोरी खोल के, हाँ, यू ट्राई टू अटेम्प्ट और यू डिड इट डिसऑनेस्टली. अगर आपने वो मिसशीफ करी, ब्रेक्स ओपन, तोड़ देता है उस पर्टिकुलर व्हाटएवर उस पर्टिकुलर बॉक्स को, तो फिर आपकी 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फाइन या दोनों. So these are all the sections with regards to criminal trespass.